topic is volume of combination of solids. Volume of combination of solids. माने इफ दो या ज़्यादा डिफरेंट शेप्स हो हमारे पास 3 डायमेंशन में एंड उनको हम आपस में जोड़ दें तो जो शेप हमारा बनेगा वो कंबाइंड सॉलिड का शेप बनेगा, राइट? तो उसके लिए हम वॉल्यूम कैसे निकालें एंड एरिया कैसे निकालें, मान लो सरफेस एरिया कुछ भी निकालना है तो कैसे निकालें, ठीक है कि नहीं? सो उसके लिए हम डिस्कशन करते हैं। इसको हम सीखते हैं किसी एक इलस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है? सो इलस्ट्रेशन लेते हैं। The question is, Shanta runs an industry in a shed. Shanta runs an industry in a shed. Okay? Which is in the shape of a cuboid. Which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. ब्रैकेट में सी figure. If the base of the shed is of dimension seven meter multiplied by 15 meter and the height of the cuboid portion and the height of the cuboidal portion is 8 meter. डेटा लिखते जाना साथ साथ. Find the volume of air find the volume of air that the shed can hold, that the shed can hold. Further, suppose the machinery suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.08
meter cube space. On an average. Then how much air is in the shed? Then how much air is in the shed? Is in the shed. And what is further given? Take pi as 22/7. Now we need to draw the figure. So how should we draw? Let us draw a cuboid first. So we can draw as this dimension is 15 meter and this one is 7 ठीक है 7 and the height is 8 meter. Okay, this is the figure. So let's try to solve the problem. So क्या क्या availability है डेटा की? Let's just check. So ये हमारी शेड है, इसका एक क्यूबॉइड पोर्शन है, राइट? 8, 15 and 7. These are the dimension, right? Now it says, further suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers each of whom occupy a space of 0.08. Yes or no? तो जो occupied space है वो total volume में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब ना एयर का वॉल्यूम आएगा, राइट? तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? बोलो क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द, इसका जो शेप है सॉलिड का उसके हिसाब से हमारा वॉल्यूम क्या होना चाहिए इसका? वेरी गुड. सो द वॉल्यूम इज इक्वल टू total volume, rather volume of cuboid plus volume of half cylinder. बिल्कुल ठीक. So let us write down volume of cuboid will be LBH.
So here is L is 15, B is 7 and 8 is the height. So LBH plus जो हाफ सिलेंडर है उसका आपका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, कोई बताएगा? कल बताया था पाई आर स्क्वायर एच पूरा वॉल्यूम होता है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट? सो इट इज पाई इंटू आर कितना है 7/2 इंटू 7/2, ये हो गया तुम्हारे पाई आर स्क्वायर, और एच कितना होगा, आर यू श्योर? ध्यान से देखो फिगर, 15 पाई आर स्क्वायर एच, सो 15 एंड इसका कितना लेंगे, हाफ, समझ पा रहे हो, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद क्या निकला, ये आ गया। लेट अस से नाउ हाउ मच डज इट कम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 15 7 जा 105 एंड 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 840 प्लस हाफ टाइम्स 22/7, राइट? सो कितना हो गया, प्लस what we can do here, 211, okay, and this 7 also will get cancelled, so 11 into 7 was 77, further multiply by upon कितना हुआ 4, इसको सिंगल 4 कर दीजिए, सो कितना आ गया 840 प्लस, सो कितना है 11, 15 7 105 और ये 115 आएगा, यही है, एंड डिवाइडेड बाई 4, ओके। अब बताओ कितना आया, Can you recheck? 4515/4. How much it will come? 840 plus 4 2 ja 8, 3 4 8 ja, and remaining was 2, and 4 6 ja, correct? And then there is some points, so how much will come? आपका यहाँ जो आ रहा है यहाँ कर लीजिए 1155, 4 से डिवीजन करो, 4 2 जा 8, करेक्ट, 3 5 4 8 जा 32, 3 5 4 8 जा 32, 3 and 0.75, okay, so 288.75. अब इसकी खुद से कैलकुलेशन करो, so answer would be 240 then 288.75
So 5, 7, 8, right, meter cube. So this is our वॉल्यूम विच वॉज रिक्वायर्ड. अब इसमें से हमको माइनस क्या क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है हमको किस किस चीज का, एक तो मशीनरी है. सो नाउ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी क्या क्या है. यहाँ पे हमारी जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपेंट्स कौन कौन से, 300 isn't it, 300 मीटर क्यूब, एंड देन प्लस कितना 0.08 times 20, correct. So it is 300 plus 20 है 160, right. So 1.6, so ये आंसर आ गया 301.6, isn't it. So this is what it is. Then what do we do, the required area would be 1128.75 and minus किसको किया हमने 30160. So what will be the answer, calculate. यहाँ 15 आना चाहिए, यहाँ 7 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, and again 8 आना चाहिए. So that much meter cube. So this is the volume of air. Therefore, the volume of air is, ठीक है. So ये वॉल्यूम ऑफ एयर इस तरह से निकाल लिया. किसी को कोई डिफिकल्टी, everybody understood? Okay, let us now do yet another question. A juice seller was serving his customer. Serving his customer. Using glasses as shown. Using glasses as shown in figure. And next sentence is, the inner diameter of cylindrical glass was, the inner diameter of cylindrical glass was 5 centimeter. But the bottom of the glass had a hemispherical raised okay, had a hemispherical raised portion. Raised portion which reduce the capacity of the glass.
glass. If the height of the glass was if the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the find the apparent capacity of the glass. And its actual capacity. चलिए इसको डिस्कस करते हैं. यहाँ पे आप पाई की वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे? 3.14. Let's find out how you can do. So first you draw a figure. So it's like a cylinder. एंड नीचे वाला पोर्शन क्या है? सेमी स्फेरिकल रेस्ड, ऐसे. ठीक है. चलिए, so this is the figure. So let's write down what are the details available with us. Okay. So inner diameter कितना है बताते जाओ ग्लास का? 5 सेंटीमीटर, राइट? तो लिख लो इनर डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर. हाइट कितनी है? हाइट है 10 सेंटीमीटर. वेरी गुड. एंड देन अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास कितनी हो जाएगी? अपेरेंट कैपेसिटी, वो तो रियल कैपेसिटी होगी. अपेरेंट कैपेसिटी तो पाई आर स्क्वायर एच ही हो जाएगी. सो अपेरेंट कैपेसिटी इज पाई आर स्क्वायर एच. चलिए आगे करते हैं. अभी कैपेसिटी को हमने क्या लिखा था? पाई आर स्क्वायर एच. कैपेसिटी मतलब हाउ मच इट कैन, हाँ इट कैन होल्ड, हाउ मच वॉल्यूम इट कैन होल्ड. सो पाई आर स्क्वायर एच की बात कर रहे हैं. पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू क्या रखें? 3.14 क्योंकि दी हुई है. इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 5/2 इंटू 5/2. एंड एच कितना है? एच इज 10, राइट? So this is in centimeter cube. So how much it will come? 3.14 multiplied by, इसको 2 5 जा कर सकते हैं. So we got 5 into 5 into 5 upon 2. Okay. How much this would come? 196.25 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है जी. एक तो ये डेटा से हमारा अपेरेंट कैपेसिटी निकल आई. एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकालें? बोलो. ठीक. सो एक्चुअल वॉल्यूम इज
हाँ, तो हम लोग जो एक्चुअल वॉल्यूम निकालेंगे या एक्चुअल कैपेसिटी निकालेंगे, तो क्या बोला है हमको, लेस कर देंगे ना। तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच है माइनस, जो सेमी है ये तो आर होगी ना तुम्हारी, सो पाई आर क्यूब, यस, ठीक है कि नहीं। सो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन बोलो। If the bottom of the glass had a hemispherical raised, so 4/3 होता है ना तुम्हारा वॉल्यूम, so half of 4/3 pi r cube. Are you okay? So this will become pi r square h minus 2/3 pi r cube. Tell me, is it okay? Now let's put the value. So pi r square h तो वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, so ये है 196.25 माइनस 2/3 टाइम्स 3.14 टाइम्स r की वैल्यू कितनी है 5/2 एंड क्यूब करना है तो कर देंगे, ये हो गया। लेट्स ट्राई टू सॉल्व। सो हाउ मच शैल वी गेट, 196.25 माइनस ये आपका आ जाएगा, दिस पोर्शन विल कम आउट टू बी 32.71। सो माय नेट जो कैपेसिटी है, एक्चुअल कैपेसिटी है, वो हो जाएगी 196.25 minus 32.71. So what will be the answer? Answer will be 163.54 centimeter cube.